an ideal cement. Suppose what is the type of the cement and what is its major requirement. Suppose I would like to take the OPC cement 43 or 53 or 33, whatever it may. The main requirement is low chloride content. The chloride content of the rebar corrosion should not be happen in the OPC when it is 0.05 and less than. That means the chloride content should be minimum. This is the ideal cement requirement. If you are chloride content is more than 0.05%, then what happens? The rebar should be corroded. That means durability problems will be arises. Next, alkali content should not more than 0.6%. These are the requirements. Next, low heat of the hydration. Example, less than 75 calories per gram at 20 days. That means low heat should be produced and adequate sulfate resistance. Otherwise, the sulfate resistance is not happened. Then what happens? That means the cement will be causes the durability problem. That means sulfate attack will be started. So the major requirement is the chloride content, alkali content, and heat of hydration and sulfate resistance. The question will be asked like this: what is the basic requirements of an ideal cement? Then you have to write this: low chloride content, low alkali content, low heat of hydration, and the adequate sulfate resistance. Okay. Next, the European codes, the European code 27 family, commonly these cements are that type 1 cement, type 2 cement, and type 3, and type 4, and type 5. The European countries will follow this classification. But in India, we will follow the BIS classification, whatever I have discussed in the previous class. Next, types of the cements permitted. In India, the various types of the cements permitted are OPC 43, 53, because 33 nowadays we are not going to use. Next, rapid hardening Portland cement. The concerned code is written here. That means IS 8041. And sulfate resistance cement IS 12230. That means in the examination, you may get the questions like this. What is the code used for the sulfate resisting Portland cement? Then the answer is IS 12230. Next, low heat Portland cement IS 12260. And for PPC cement, this is the very famous code. That means IS 1489 part 1. And slag cement IS 455. Now, one beautiful thing is here that means I would like to state that if you go to the 30 years back, the production of cement is such a way that OPC around 40 to 45% OPC production is there. If you go to the 30 to 40 years back, okay. And PPC, the production is only less than 5%. And PSC cement, Portland slag cement, is around 5%, 30 years back. What I am saying, these figures are 30 years back. But today, even today, if you compare the cements, the today production is reverse. That means PPC production is approximately 90% approximately, and OPC production is approximately 4%, and PSC cements is slag cements is approximately 5%, and other type of the cement, soil well cement, sulfate resisting cement, and low heat cement, etc. These percentage is approximately 1%. Now, if you see the comparison in the olden days and the latest trend, now you observe two things. The Portland slag cement in the earlier days and the Portland cement in the present days should not be changed. That means 30 years also the slags are 5% production, and today also the 5%. But obviously your PPC is changed. Nowadays all the cements are produced from the PPC background only, Portland Pozzolana cement, fly ash based. Okay, majority case है fly ash based. मतलब some calcined clay also there, but that is very little bit. Some second is calcined clay. The calcined clay is also acting as a cementitious material, but its percentage of the addition is not more than the 10%. 80% of the PPC is using nowadays is fly ash only. Now you have to come to the conclusion that the Portland slag cement in the earlier days and nowadays are same, one and the same, 5%. 30-40 years back also 5% usage
and today also the 5 to 6% only the usage. But only the thing is PPC and OPC is entirely the scenario is changed. Next. Now go to the next chapter, mineral admixtures. The mineral admixtures are two types. One is the totally admixtures are divided into two categories. Admixtures are mineral admixtures and chemical admixtures. Mineral admixtures is what? The mineral admixtures means this pozzolana materials, fly ash and silica fume, ground granulated blast furnace slag, and any ashes, suppose rice husk ash, and this any ash you want to burn, any matlab coconut, that may coconut shells you are burned, and that material you are ash form you are added, that is the pozzolana material. Suppose in the groundnuts, if the groundnut shells you are अक्षय ये बंद कर दो. Suppose if you are groundnuts etc., if you are first burned and you are added in the cement, that is comes under the ashes. That ashes also you can add as a pozzolana materials. Now come to the mineral admixtures. The materials of the admixtures are two types. Number one is chemical admixtures. Chemical admixtures matlab superplasticizers, accelerators, retarders, etc. etc. Mineral admixtures matlab pozzolana materials and any other materials. The admixtures are classified into two types, very, very important. Mineral admixtures and chemical admixtures. Let we go one by one. Mineral admixtures. Pozzolana additives. Pozzolana additives means what? The fly ash and GGBS, ground granulated blast furnace slag, and silica fume. These can be used as a blended cement. That means blended means mixed. That means in terms of the PPC, Portland pozzolana cement, or Portland slags. If you are added this slags, that means this GGBS, ground granulated blast furnace slag. If this slag material is added, then this is comes under the slag cements. And the slag cements also very good cement, equal to the OPC. That means strength is very high. Okay, but when compared with the OPC, PPC and Portland slag cement, OPC always give the better results. OPC always give the better result. After OPC, slag cement will give the better result. After slag cement, this PPC will give the better result. The priority is the OPC, next slag cement, next pozzolana cement. Okay, next. Here the blending is done in the two types. One is it can be added in the factory. Second one is it can be added in the site itself. Suppose you want to add the fly ash in the cement, you can add the fly ash in the factory itself. That means OPC 75%, 25% fly ash, you can add it in the company itself. That means in the Ultratech, Vishnu Cement, Priya Cement, KCP Cement, JP Cement, etc. The company itself add the the OPC, this fly ash, then that is blended in the company itself. Sometimes you are bringing the OPC separately, you are bringing the fly ash separately. In the site itself, depending upon your requirement and work, you are added. That is called the site mixing. The part of a replacement of OPC is added in the concrete mixer. Concrete mixer also, as per the suggestions of the engineer, he can add it in the site. But generally, in the site mixing, the quality control will be very, very poor. That means, suppose if I will tell you an example, if you want to a television, suppose Sony company, they are producing the Sony company television, they are assembled the TV in the company itself. So the quality control is very high. That means it's the quality control tests and the manufacturer skilled engineers will assemble the Sony TV so that the quality of the picture is very high. But suppose sometimes to reduce the cost, what happens? Some local mechanics, some local electricians, what they will do, they will bring the locally available material and they will assemble in their home. Then the cost of the TV is very less, but the quality is obviously poor. Similar way, if your mixing is done in the company itself, the quality is very, very high. And if your mixing is done in the site, the quality will be obviously will be low because of the poor skilled labor and poor equipments, etc. factors, other controlling factors. Okay. Next, typical composition of the fly ash. Now you see
The major predominant content in the fly ash is silica. The silica is amorphous silica. Silica is two types. One is crystalline silica, second one is amorphous silica. That means whatever the silica content present in the fly ash and that silica fume, that is the amorphous silica. The content is around 60%, very, very important. The alumina is 33% approximately, iron is 7%, and calcium oxide is 10%. In case of the cement, what is the SiO2 content? Maximum 10 to 19%. What about the CaO content in the cement? OPC cement, 64% maximum. Yaad rakhna. You have to remember these two. Next, alkalis. The maximum content is 0.6%, 1%, less than 1%. These alkalis are very, very dangerous. But for the production of the pyroprocessing production, the alkalis should be added. You can't avoid that. Okay. Next, IS 338012 part 1 is the code used for the fly ash. Next, quantity of the fly ash. The main requirements in which govern the performance of fly ash in the cement concrete obtained from the one source can be summed up in terms of the 5 key parameters. That means the fly ash can be judged based on the 5 parameters. What are those? Number 1, specific surface area. If you are doing the fineness with the help of the blades, that means ये specific surface area जितना fine है, जितना more है, मतलब उतना best fly ash है. That means specific surface area ज्यादा होना चाहिए. Either cement हो, or either fly ash हो, or either silica fume. Because जितना finest material है, उतना occupy करेगा, मतलब cement में. That means concrete, when you are making the concrete, lot of occupancy will be there. अगर आपका grinding है, fine grinding नहीं है, if you are not fine grinded, that means its specific area is very less. What happens in that case? The occupancy rate is very, very less. Next, second parameter for judging the quality of the fly ash. That means the quality. Suppose factory number 1, nearby sources. For me, nearby source is मोतीपुरा. Nearby मतलब ये गुना का बगल में एक मोतीपुरा है, मतलब राजस्थान में, उधर से मतलब वो fly ash मिलती है. मतलब when I was a student at that time, Kanchanmala madam was doing PhD along with me. At that time, she bought the fly ash from the मोतीपुरा. That means ये राजस्थान मोतीपुरा चौकी में मतलब वो thermal power plant से लेके आया था. So उस समय the residue content है 45 microns. That means 325 mesh. That means 45 माइक्रॉन्स का जो सीव से हमें टेस्ट करेंगे. अगर रेसिड्यू है, मतलब ज्यादा ऊपर बच रहा है, दैट इज बेकार, मतलब फ्लाई ऐश है. दैट मींस रेसिड्यू बचना नहीं चाहिए. इधर सीमेंट हो और इधर फ्लाई ऐश है. दैट मींस इफ यू आर यूजिंग द 325 माइक्रॉन्स mesh, the material, majority of the 95% material should be passing through the 45 mesh. That means 45 microns mesh. Otherwise, if the retained material is retained material is more, that means that fly ash is not finest one, so that the specific area is very, very less. That type of the fly ash is added in the cement, your quality will be reduced. Next, unburnt carbon. That means this is called the loss of ignition. Next, moisture content. Moisture content always, less moisture content is always suggestible. And glass content, very, very important factor is glass content. If the glass content is more in any fly ash, that is the best quality of the fly ash. If 2 companies are providing the fly ash to me, that means one thermal power plant, suppose Ramagundam thermal power plant, I bought the fly ash 100 kg, and Motipura thermal power plant, I have bought the fly ash. Both are 100 kg. Which is suitable to me for my requirement? I want to check. In that first point, I would like to check the glass content. The glass content जिसमें ज़्यादा है, that means the more glass content is available in which type of the material, type of the fly ash, then that should be more suitable in adding as a pozzolana material. That means मोटा बात ये है भाई, ग्लास कंटेंट है ज्यादा होना चाहिए. जितना ग्लास कंटेंट ज्यादा है, मतलब उतना बेस्ट है. मतलब साबुन देखा होगा, मतलब सोप है, मतलब जो बाथ साबुन है, मतलब साबुन है, आप डेली नहाने के लिए साबुन यूज कर, उसमें जो TFM कंटेंट है, जितना TFM कंटेंट ज्यादा है, वो साबुन बहुत महंगा बिकती है. दैट मीन्स दैट TFM कंटेंट विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ द मतलब सोप. Similarly, the glass content will decide the fly ash quality. And moisture content less होना चाहिए. Unburnt carbon है, मतलब less होना चाहिए. Residue also less होना चाहिए. Specific surface more होना चाहिए. Specific surface area ज्यादा होना चाहिए.
and residue, unburnt and moisture content क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. Glass content ज़्यादा होना चाहिए. Next, specification for the fly ash in the cement and concrete. Here, the ASTM code and European specifications and BIS code. That means 30 and 18 part. Here, it is compared. That means as per this code and as per the standard, SiO2 minimum is how much. That means loss of ignition is how much. Like that to have a look. This is not that much important. But the thing is, you have to compare the in which countries, ASTM codes and European nations and India, what are the codes and what are the basic requirements of the silica fume and fly ash. Next, now you see, here you go. Glass content versus lime reactivity of the fly ash. This curve is very, very important. X-axis lime reactivity, x-axis lime reactivity in Newton per mm square. That means MPa. That means this is the strength. Okay. Next, glass content is in y-axis. Now, suppose ये जो plant number 1, this is from Ramagundam thermal power plant, Andhra Pradesh. में एक बोरी है, मतलब fly ash है, Ramagundam मतलब thermal power plant से लेके आया. Next, second मैंने लेके आया था plant number 2 से. This is bought from the Motipura Chowki, Rajasthan से लेके आया. मतलब I have to compare with the glass content versus lime reactivity. Now you see the glass content जिसमें ज्यादा है, that is the best suited material for mixing in the cement. First thing है glass content check करता है. Next, इसके बाद now you see in this table the India and America, Japan, Italy, some countries the glass content है. Now you see the average glass content in America is around approximately 90% of the glass content present in the fly ash. How this will happen? Because the coal produced in the USA is much more better quality than the India. In our India, the coal is inferior quality, very poor quality. That's why after burning the coal, whatever the fly ash is nothing but your waste material produced from the thermal power plant. So after in this inferior quality coal, if you are burning in the thermal power plant, in that the outcome source is the fly ash. It is also having the inferior material, that is around only 20%. So obviously you know that means the fly ash is checked with the help of the 5 parameters. Number 1 is loss of ignition, strict surface area, and glass content, and moisture content, etc. features. Out of that, the glass content will be major parameter. Now you see, America में जो भी fly ash produce हो रहा है, उसमें glass content है 90% है, 90% है. That's why उसका जो cement है, if you are added the PPC cement, that means PPC cement of the bag of the PPC cement in the America and the PPC cement of the India, if you compare both, then the quality of the PPC is much more in the USA because the quality of the glass content is very high. मतलब माइक बंद करो भाई. सर एक क्वेश्चन सर, जैसे ग्लास कंटेंट आपने बोला कि नहीं, लास्ट the questions will be discussed at the last 15 minutes. The questions will be asked at the last 15 minutes. Okay. Now, next, the silica fume. The silica fume, that is already I have told to you, the silica fume is the very finest material. That is just like a vapors. It is just like a vapors. Okay. So now the silica fume is a byproduct. Byproduct means it is a waste material. Okay. But it is a waste material. कहने के लिए waste material है. But silica fume है very costliest material than the cement. Around 20 to 30 times more costlier than the cement. Why this much cost? Because if you want to make the RPC means reactive powder concrete. Reactive powder concrete मतलब है very strong concrete. That means its compressive strength around 300 newtons per mm square. Its compressive strength is more than 700 newton per mm square. That means अगर आपको bomb विस्फोटन किया है, that means bomb blast हो गया, तब भी ये concrete टूटेगा नहीं. If that type of the concrete में क्या है, ये सिलिका फ्यूम है, मतलब around 40%, 50% तक है सिलिका फ्यूम यूज करता है. No question of adding the coarse aggregate. Coarse aggregate बिल्कुल यूज नहीं करेगा. समझ गया ना? So at that time the सिलिका फ्यूम है, मतलब ये सिलिका फ्यूम में खास बात क्या है? Its fineness. Its fineness is around 25,000. That means the fineness of the cement is normal range is 225 square meter per kg. Okay, normal range.
लेके मतलब 275 स्क्वायर मीटर पर केजी और अप ऑन एटमोस्ट 325 इतना रेंज तक रहती है सीमेंट का. द सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया, द स्पेसिफिक surface area of the cement is, this is the range normally. But if you go to the silica fume, the specific surface area is 17,000 square meter per kg से लेके 25,000 square meter per kg. Suppose now you see approximately 100 times more finer than the silica. This is almost a smoke, धुआं है एक तरीका का. तो amorphous silica है, इसमें सिलिका इज मतलब है मतलब वेरी मतलब डोमिनेंट मटेरियल. दैट मींस 95% ऑफ द सिलिका प्रेजेंट इन द सिलिका फ्यूम है. मतलब सिलिका फ्यूम में 90% ऑफ द मटेरियल है. देखो नाउ यू सी द एसेंशियल फीचर्स ऑफ सिलिका फ्यूम इज वेरी फाइन पार्टिकल्स and high content of amorphous silica. Amorphous silica means it should be mixed in the water. That means suppose if you see that means sand etc, that sand is also silica, but that should not be mixed in the water. But this amorphous silica, the beauty of the amorphous silica is this should be mixed in the cement and water and etc, so that pore filling it should be very useful. So the 90% of the silica is present in the form of amorphous silica. That's why you will get the high strength when you are using the silica fume. Then you can ask me a question, सर मतलब सिलिका फ्यूम में यूज कर सकता है, मतलब क्यों यूज नहीं कर रहा है. बट सिलिका फ्यूम में एक दिक्कत है, एक ही ड्रॉबैक है. वो सिलिका फ्यूम जब भी यूज करोगे लॉट ऑफ वाटर सीमेंट रहेगा. दैट मींस वाटर मांगेगा, पानी मांगेगा. दैट मींस इट नीड लॉट ऑफ वाटर. व्हेन यू आर एडिंग द सिलिका फ्यूम मोर एंड मोर, the requirement of the water content is also will be more and more. But strength point of view, as I told you earlier, मतलब मैंने आपको एक चीज बता दिया था मतलब प्रीवियस क्लास में, बोलना मत. मतलब ये दोनों का बीच में रेशियो मतलब ऐसा रहती है. दैट मीन्स स्ट्रेंथ, दैट मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले लो, एनी स्ट्रेंथ ले लो. स्ट्रेंथ है वाई एक्सेस में ले लो, एक्स एक्सेस में वाटर सीमेंट रेशियो ले लो, है ना. दैट मीन्स आपका जो कर्व है, बेसिक कर्व है, मतलब ये ऐसा रहती है, ये ऐसा रहती है. दैट मीन्स अगर आपने जो 0.25 वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन किया है, आपका स्ट्रेंथ है लगभग 80 MPa रहेगा. मान लीजिए आपका जो मतलब 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन किया, आपका स्ट्रेंथ है मान लीजिए 50 MPa रहेगा. MPa मतलब है न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके ना. अगर आपका जो मतलब वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 हो गया, मतलब ये स्ट्रेंथ है मान लीजिए 35 MPa हो गया. नाउ व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? The strength is inversely proportional to water cement ratio. This is very very important. मतलब स्ट्रेंथ है मतलब बढ़ता गया तो वाटर सीमेंट रेशियो घटता गया. अदरवाइज दूसरा तरीका मैं बताता हूँ. जैसा वाटर कंटेंट, दैट मीन्स वाटर सीमेंट रेशियो मतलब वो बढ़ता गया, मतलब इंक्रीज है, स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? द स्ट्रेंथ है रिड्यूसिंग. ये कर्व है मतलब सो मेनी टाइम्स है, मतलब आपको बीटेक लेवल में, एमटेक लेवल में टीचर्स बताया होगा. मतलब जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम यूज करोगे, आपका स्ट्रेंथ है उतना बढ़ेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं. दिस इज द बेसिक पिलर. द कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो बेसिक पिलर पॉइंट है, द कंक्रीट मतलब कॉलम इज द बेसिक मतलब डोमिनेंट मटेरियल इन द स्ट्रक्चर ना. अगर कॉलम फेल हो गए तो बिल्डिंग गिर जाएगा. Similar way, the basic pillar is the water cement ratio. Always it should be kept very very minimum. मतलब कभी भी आप है कंक्रीट बनाओगे, आप है हमेशा रखो मतलब वो वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम रखो. मिनिमम मतलब क्या है? आप जितना पॉसिबल है उतना मिनिमम रखो. मतलब डोंट आस्क मी ए सिली क्वेश्चन, सर मैं कितने मिनिमम रखूं? आपका जो रिक्वायरमेंट है, M40 ग्रेड है क्या, M60 ग्रेड है क्या, M70 ग्रेड कंक्रीट है, याज पर जितना. लेकिन आप कभी भी मतलब जो वाटर सीमेंट रेशियो है ना 0.23 से कम मत रखियो, क्योंकि जितना दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. इससे नीचे मत जाइयो. मतलब अगर आप इससे भी नीचे गया है, मतलब आपको क्या करना? डोसेज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीज करना पड़ेगा. प्लास्टिसाइजर
plasticizer. ये dosage of super plasticizer increase करना पड़ेगा. Some research they are conducted 0.1, but the dosage of the super plasticizer they are added the 12.5 liters per cubic meter product. But the problem is the super plasticizer cost is very high. The super plasticizers are very costly. The super plasticizer matlab is costly. That means 250 rupees per liter approximately. है ना, अलग अलग तरीका है. दैट मींस BASF कंपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं. टुमारो यू वुड लाइक टू टेक द मतलब PhD वर्क इन दैट यू वांट द सुपर प्लास्टिसाइजर्स. वो अलग अलग तरीका सुपर प्लास्टिसाइजर आता है. अप्रोक्सीमेटली मतलब 100 रुपीस से लेके 380 रुपीस अप्रोक्सीमेटली मतलब 1 लीटर मतलब पर लीटर क्या कह रहा है, बेसिक डायग्राम कर रहा है. दैट मीन्स आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है मतलब लोएस्ट से लोएस्ट रखना चाहिए. मान लीजिए मैं है 0.4 के जगह पे 0.35 रख दिया तो मेरा स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. एक्सलेंट. दैट मीन्स if I am using the lower water cement ratio, obviously my strength is equal to more. More strength obviously I will get. This is the basic point, pillar point. Okay, but here the one question is there, one dangerous point is there. मतलब आपने जितना पानी कम कर दोगे ना, इधर एक समस्या आ जाएगा. दैट मीन्स वन पॉइंट आ जाएगा. व्हाट इज दैट? दैट इज वर्कबिलिटी. द वर्कबिलिटी इज द क्वेश्चन मार्क नाउ. मान लीजिए आपने पानी है जितना कम कर दिया है, स्ट्रेंथ तो बहुत बढ़िया आएगा भाई, द स्ट्रेंथ है बहुत बढ़िया आ जाएगा. बट द थिंग इज द कंक्रीट शुड नॉट बी वर्कबल मतलब क्या है, इट शुड नॉट बी, फ्लो इज नॉट इजी. दैट मीन्स द कंक्रीट बेसिक पैरामीटर्स आर व्हाट? द बेसिक प्रॉपर्टी इज workability. First point is workability. The second point is strength. The concrete, the second parameter is strength. The third parameter is durability. This is the pillar of the concrete technology. This is the pillar 2. Pillar number 2 में pillar number 1 basic diagram बता दिया. This is the pillar number 2. Concrete का basic parameters और basic properties है, क्या है? Properties of the concrete. Properties of the basic concrete is 3. One is workability, number 1 is strength, number 3 is durability. ये पॉइंट है, भूलना मत. जब तक आपका PhD कंप्लीट नहीं होगा मतलब तब तक है ये पिलर पॉइंट नंबर 2, पिलर पॉइंट नंबर 3, पिलर पॉइंट नंबर 1 भूलना नहीं है. यू डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट. समझ में आएगा ना? द कंक्रीट का बेसिक पैरामीटर है वर्कबल होना चाहिए. मतलब इसमें मैं एक लास्ट ईयर है, एक मैं सब्जेक्ट है, दिस इज 5th टाइम आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर द PhD स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट से पूछा है, भैया ये तीनों में बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सा है? ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूरेबिलिटी? दिस इज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन. दैट मींस आफ्टर 50 इयर्स द बिल्डिंग शुड बी मतलब इन दी मतलब स्टेबल कंडीशन. इट शुड नॉट बी फॉल डाउन, मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए. स्ट्रेंथ मतलब जनरली 28 दिन में हमने स्ट्रेंथ कंसिडर करेंगे. समझ में ना? नाउ मैं पूछ रहा हूं ड्यूरेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वर्कबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पूछा है. बट एक स्टूडेंट मेरे से पूछा, सर स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फैक्टर. एक स्टूडेंट पूछता है सर ड्यूरेबिलिटी इंपॉर्टेंट, एक स्टूडेंट है वर्कबिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. समझ में आ गया ना? नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. हाँ ओके, नाउ सिका आप बताओ ये तीनों प्रॉपर्टीज में कौन सा बेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीनों में? इंपॉर्टेंट फैक्टर हाँ वर्कबिलिटी. ओके. व्हाट अबाउट अक्षय? सर स्ट्रेंथ सर. हाँ ओके. नाउ ओके, म्यूट द माइक्स. हाँ अब म्यूट द माइक. नाउ सीका इज द करेक्ट आंसर. द सीका इज द सेट द करेक्ट आंसर बिकॉज आपका ये जो ड्यूरेबिलिटी जो स्ट्रेंथ हो ये कब आती है? आफ्टर द 28 डेज, आफ्टर द मे बी 90 डेज, मे बी 7 डेज, मे बी 5 इयर्स, मे बी 50 इयर्स आती है. समझ में आएगा ना? ये स्ट्रेंथ तो ड्यूरेबिलिटी. बट ये वर्कबिलिटी इन दी फर्स्ट 30 मिनट्स, द फर्स्ट 30 मिनट से लेके 1 आवर के बिफोर, जैसा फ्रेश कॉन्क्रीट, इफ यू आर मेड दी फ्रेश कॉन्क्रीट, नाउ
इफ यू मेड द फ्रेश कंक्रीट इन दिस स्टेज, अगर आपका जो कंक्रीट है वर्कबल नहीं है, इफ इट इज नॉट वर्कबल, दैट मीन सूखी सूखी मटेरियल है, इट इज ए ड्राई मटेरियल, देन it is normally considered as a waste material. That means it is nothing but the cow dung. Cow dung. That means layman language में ये गोबर है बस, cow dung है बस. Because there is no water at all. That means आपको जितना water चाहिए, that means that much water you are not at all added. Strength बहुत दूर का बात है. मान लीजिए if you are placing in the reinforcement, suppose this is your concrete slab, that means the spacing is for example 25 mm. That means 250 mm. For example, 25 centimeter or इतना मतलब spacing है, मतलब सरिया तो. Or if you go to the further dense, that means the dense reinforcement. In that case, the spacing is something less than 30 mm. 30 mm. For example, at that time, आपको concrete है. If you are pouring the concrete, it should not reach to the bottom. Even though if you are put the vibrator. If you are putting the vibrator, table vibrator or needle vibrator or jolting rod, है ना, whatever it may be effort, or tamping rod use करोगे or hammer use करोगे, because आपका material है dry material है, that is not at all workable material. असो पहले तो आपका concrete है workable नहीं है, असो strength कहाँ से आएगा? There is no second question of the strength and durability. So the first basic parameter होना चाहिए भैया आदमी को, मतलब आपको मैं बता रहा हूं, आदमी जीने के लिए हवा चाहिए, वाटर चाहिए एंड फूड चाहिए. समझ में आ गया ना? आप जीने के लिए ये तीनों चाहिए, बट फूड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड जस्ट लाइक ए ड्यूरेबिलिटी. समझ में आ गया ना? वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड जस्ट लाइक ए स्ट्रेंथ, बट एयर इज मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ वर्कबिलिटी. अगर आपको एयर है, हवा है, कम से कम आप 5-6 घंटा मतलब जिंदा रह सकता है. समझ में आ गया ना? अगर वाटर नहीं है, एटलीस्ट आप 8 to 10 hours है, मतलब यू कैन सर्वाइव. Similarly, if your concrete is workable, then only it should be think about the strength and durability in the longer days. So the first parameter, satisfying parameter is workability, but not strength and but not the durability, the basic pillar point. Because आपका स्टार्टिंग डे में क्या होना चाहिए? कंक्रीट है कंप्लीटली वर्कबल, मतलब फ्लूइडिटी होना चाहिए. अदरवाइज मतलब वो लोग पब्लिक जो भी काम करेगा, लेबर बोलेगा भैया एक मग्गा पानी डालो, क्या कर रहा है ये सूखी मटेरियल, ये अंदर घुसेगा नहीं है, आप टैंपिंग करो, कुछ भी करो, मतलब असला हाइड्रेशन प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा. बिकॉज द हाइड्रेशन प्रोसेस नीड द वाटर. दैट मीन्स योर मिक्स है, आधा मिक्स है वाटर के साथ है, आधा मिक्स है ड्राई के साथ है, मतलब इस एरिया में असला हाइड्रेशन जाएगा नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द हाइड्रेशन प्रोसेस इन दिस एरिया. कहां पे मतलब ये वाटर है इन दैट एरिया ओनली, मतलब हाइड्रेशन प्रोसेस है. अगर हाइड्रेशन प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेंथ कहां से आ जाएगा? आपका स्ट्रेंथ, देयर इज नो डाउट अबाउट दी, देयर इज नो जनरेशन ऑफ द स्ट्रेंथ. प्लीज अंडरस्टैंड. फॉर दैट पर्पस इधर है, मतलब थोड़ा बैलेंस करना पड़े. मैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बता रहा हूं. अब मैं मतलब अभी तक है वर्कबिलिटी का फेवर में बात किया, अब मैं स्ट्रेंथ बारे में बात करता हूं. मेरे पास है, आई एम ए वेरी वाइज पर्सन, आई एम ए वेरी कनिंग पर्सन. नाउ यू सी, आई एम ए सॉइट इंजीनियर. मैं क्या करता हूं, ये बेसिक डायग्राम को भूलना मत. दिस इज द पिलर, ये फर्स्ट पिलर. इसको ये काम करता हूं, आपको कंक्रीट है, मान लीजिए M40 ग्रेड कंक्रीट बनाने के लिए ये काम करता हूं. 186 लीटर, समझने के लिए कोशिश करो, 186 लीटर्स वाटर चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक दी 186 लीटर्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ द concrete production, per 1 cubic meter of the concrete production. कब M40 for accordingly that 186 लीटर है, मेरे को वाटर सीमेंट रेशियो हो रहा है 0.4 आ रहा है. That means for this 186 liters, my water cement ratio is equal to water cement ratio 0.4. मैं एक काम करता हूँ, 0.4 वाटर डाल दिया ना, मेरे को तो स्ट्रेंथ है M40 बनेगा नहीं है. अब एक काम करता हूँ, मेरे को वर्कबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. As I said, as the Sika said, workability very important. But as the Akshay said, strength is more important also. Yes, correct. Strength is also more correct, important. कब वो, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इधर है थोड़ा मेरा टैलेंट यूज करता हूँ. मैं टैलेंट ऐसा यूज करता हूँ, मतलब वर्कबिलिटी कितने देर के लिए चाहिए? द वर्कबिलिटी जस्ट फॉर मतलब 30 मिनट से लेके 1 आवर का बीच में वर्कबिलिटी होना चाहिए. दैट मींस कंक्रीट है, मतलब फ्लूइडिटी होना चाहिए. सो दैट है, मतलब सरिया के बीच में से कंक्रीट है लास्ट तक सर्कुलेट हो जाएगा. सो दैट है
कॉम्पैक्शन बढ़िया से कॉम्पैक्शन हो जाएगा। इसके बाद वर्कबिलिटी से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। जब कंक्रीट है, ये जो मान लीजिए कॉलम मेंबर हो और फुटिंग मेंबर हो और व्हाट एवर इट में बी, दिस इज ए कॉलम, है ना, ये जो कॉलम का अंदर है कंक्रीट है, आखिरी तक पहुंचना चाहिए। फॉर दैट पर्पस आई नीड द वर्कबिलिटी। समझ में आएगा ना, आई नीड द वर्कबिलिटी। एक बार कंक्रीट है आखिरी तक है, मतलब वो पहुंच गया था, इफ द कंक्रीट इज रीच्ड, देन आई डोंट नीड दिस वाटर कंटेंट एट ऑल। I don't need this water content. For that purpose, what I will do, instead of doing this 186 liters, इधर देखो मैं थोड़ा टैलेंट यूज कर रहा हूं, 186 लीटर्स का बदला में मैं एक काम करता हूं। हाँ, नाउ यू सी, ये 186 का जगह पे मैं एक काम करता हूं, ओनली 150 लीटर है पानी डालता हूं, 150 लीटर वाटर डाल देता हूं। बाकी 36 लीटर्स का जगह पे मैं एक काम करता हूं, 2 लीटर्स है सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करता हूं, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करता हूं। ये सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए स्टेरॉइड, एक्ट एज ए स्टेरॉइड। स्टेरॉइड मतलब है, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जो रनिंग रेस लगाता है हुसैन बोल्ट वगैरह, जो मतलब एथलीट्स है, मतलब दौड़ता है ना, उसके लिए तो एक स्टेरॉइड्स यूज करता है। मान लीजिए डोप टेस्ट में वो स्टेरॉइड्स यूज करना नहीं चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग बहुत तेजी से दौड़ता है, दैट मीन्स वो है जो ये मतलब गांजा उंजा टाइप का, दैट मींस आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका नाम है, स्टेरॉइड्स है। अगर वो स्टेरॉइड्स इंजेक्शन में ले लिया, उसके पास है एनर्जी आ जाता है। दैट मींस कुछ बच्चे देखो गांजा वंजा पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों? वो लोग है टेम्पररी एक आधा घंटा के लिए उसका मतलब हवा में मतलब ऊपर उड़ता रहता है। समझ में आएगा ना। सिमिलरली ये जो 2 लीटर का जो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, दिस सुपर प्लास्टिसाइजर इट विल एक्ट एज जस्ट लाइक ए स्टेरॉइड, स्टेरॉइड ले जैसा एक्ट करके, मतलब जो भी 186 लीटर्स का जो भी पानी मतलब वो काम करेगा, वो 150 लीटर से सेम इफेक्ट है वर्कबिलिटी को मतलब वो दे देगा। कौन? ये सुपर प्लास्टिसाइजर। ये सुपर प्लास्टिसाइजर कैसे दे देगा, मैं एक मतलब एक बेसिक मतलब एक केमिस्ट्री बताता हूं, समझ में आ गया ना। दैट मीन्स नाउ यू सी, देखो दिस इज ए सीमेंट ग्रेन, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो, ये केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए। ओके, ये जो 4 है, दीज आर दी सीमेंट ग्रेन्स, दीज आर दी सीमेंट ग्रेन्स। समझने के लिए कोशिश करो, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, ये सीमेंट ग्रेन के ऊपर है, जस्ट लाइक जब भी आप कंक्रीट में मतलब ये पानी मिलाओगे, जस्ट लाइक बबल, दैट मींस वाटर बबल। ये पानी क्या करेगा, इसको अराउंड है, दिस इज अ वाटर बबल, है ना, ये वाटर बबल है ना, ये वाटर बबल है, फॉर्म करेगा। जैसा ये सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, व्हेन यू आर एडेड द सुपर प्लास्टिसाइजर, है ना, जब वो सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड कर देगा, मतलब ये जो भी ये बबल को मतलब वो ये पट जाएगा, ये बबल को तोड़ देगा। दैट मींस ये सुपर प्लास्टिसाइजर विल ब्रेक दिस बबल ऑफ वाटर। ये जैसा ये बबल इसके अंदर है, पानी भरा रहता है, ये पानी का जो भी मतलब इसको तोड़ देता है। ये जो रेनी सीजन में देखो, जैसा जैसा एक बबल फॉर्म होता है पानी के अंदर, एक वो बेलून जैसा फॉर्म होता है, जैसा एक बूंद टपकेगा तो उसके ऊपर पट जाएगा, समझ में ना। देन जैसा ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, ये सीमेंट ग्रेन के ऊपर है, जो भी ये फ्लॉक मटेरियल में ये बबल को, आउटर बबल को तोड़ देगा, ये बेलून फट जाएगा, इसके अंदर जो भी पानी है ये बाहर रिलीज हो जाएगा। Now this is the action of the super plasticizer. The action of super plasticizer. Super plasticizer will break this molecule or this break the bubble of the water which is occupied around the surface of the सीमेंट ग्रेन। ये सीमेंट ग्रेन के ऊपर है, जो भी ये गोल शेप में, ये भी जो भी मतलब ये ग्रीन शेप में बबूल है, ये बबूल को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद तुरंत है जो भी पानी है वंस अगेन मिक्सिंग में वापस यूटिलाइज करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सुपर प्लास्टिसाइजर, समझ में आएगा ना। इसलिए क्या करेगा, दैट मींस ये स्टेरॉइड्स जैसा, मतलब हुसैन बोल्ट देखो, अगर उसको इंजेक्शन दे दिया, ये गलत इंजेक्शन दे दिया, वो बहुत तेजी से दौड़ेगा, समझ में आ गया ना। सिमिलरली आपको थोड़ी देर है, मान लीजिए कुछ मतलब सिगरेट पिया था, दैट पीपल विल फील दैट वो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्ट, दैट मींस वेरी स्टेरॉइड्स है, वो यूज करना नहीं चाहिए। सिमिलरली ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, मतलब क्या करती है, ये सुपर प्लास्टिसाइजर है कम वाटर में, कम वाटर मतलब है ये जो 150 किलो, ये जो 150 लीटर पानी है, इट विल इक्वल इफेक्ट ऑफ द 186 लीटर्स। कैसे? दैट मींस जो भी ये मतलब ये जो अनएक्टिवेटेड वाटर है इसको रिलीज कर देता है, ये काम करती है सुपर प्लास्टिसाइजर। अगर आपने मतलब कंक्रीट में सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड नहीं किया था, मतलब आप जितना भी पानी डालता रहोगे, ये सीमेंट ग्रेन के ऊपर है, मतलब ये सीमेंट ग्रेन को मैं मैग्नीफाई कर दिया ब्रदर, मतलब इतना मोटी सीमेंट ग्रेन है, रहेगा नहीं। मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं,
ये सीमेंट क्रेन के ऊपर है, जो भी ये जो वाटर है ये पूरा ये क्या है मतलब राउंड इसके अंदर है, पानी है ना, ये ऐसा 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 मतलब फिल करके ये टूटेगा नहीं है, ये ब्रेक टूटेगा नहीं। जब भी सुपर प्लास्टिसाइजर आ जाएगा, ये जब सुपर प्लास्टिसाइजर आएगा, ये सुपर प्लास्टिसाइजर का काम क्या है, इसको बबल को तोड़ देगा, ये बबल तोड़ देगा, मतलब ये बबल के अंदर जो भी पानी है ये ड्रॉप्स है बाहर आ जाएगा, ये ड्रॉप्स है बाहर आएगा। जो भी ये वाटर बाहर आ गया, दिस वाटर वंस अगेन गोइंग इनटू द मिक्सिंग प्रोसेस। मिक्सिंग प्रोसेस जो कंक्रीट में, जो मिक्सर में डालोगे ना कंक्रीट, वो मिक्सिंग प्रोसेस में वंस अगेन इट विल टेक एक्टिव पार्ट। इसलिए दैट मींस कम वाटर में, दैट मींस लो वाटर में यू विल गेट more workability when if you are using the SP super plasticizers, है ना, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया है, मोर वर्कबिलिटी फार्मर। ये कितने देर रहेगा, जस्ट लाइक स्टेरॉइड, जस्ट लाइक आपने बीड़ी पिया, तंबाकू पिया, कुछ गांजा पिया है, कितने देर रहेगा, मैक्सिमम 30 मिनट्स। मैक्सिमम 30 मिनट्स के बाद है ना आपको मतलब वो बहुत बॉडी पेन शुरू हो जाएगा। सिमिलरली मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर है ये सुपर प्लास्टिसाइजर का, दैट मींस आपको फर्स्ट आपने क्या सोचा 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो, दैट मींस 186 लीटर्स। अब सेकंड केस क्या किया, मान लीजिए 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो ले लिया, दैट मींस 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो ले लिया, एंड मान लीजिए 2 लीटर्स है मैं स्टेरॉइड डाल दिया, स्टेरॉइड मतलब है 2 लीटर्स है सुपर प्लास्टिसाइजर एसपी डाल दिया, सुपर प्लास्टिसाइजर। तब क्या करेगा, मेरे को वर्कबिलिटी भी आ जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्कबिलिटी आ जाएगा। जैसा कम वर्कबिलिटी में, दैट मींस 0.3 वर्कबिलिटी के साथ से मेरे को स्ट्रेंथ कितने दे देगा, 42 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे देगा। क्यों, मेरा वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम ब्रदर, इधर 0.3, बट मैंने ये सुपर प्लास्टिसाइजर यूज नहीं किया, ओनली 0.4 डाल दिया, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 डाल दिया, तब मेरे को 42 नहीं आएगा, कितना आएगा, वो ओनली 36 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा। नाउ इधर है कंक्लूजन ये है, फॉर द शॉर्ट टेम्पर के लिए, दैट मींस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्कबिलिटी मेंटेन के लिए, टू मेंटेन द वर्कबिलिटी यू हैव टू यूज द सुपर प्लास्टिसाइजर, बिकॉज दैट मींस वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करने के लिए, दैट मींस कम पानी में अपना मतलब मिक्सिंग है, मतलब जस्ट लाइक फ्लूइडिटी बनेगा, दैट मींस आई कैन से दैट फ्लूइड मटेरियल बनेगा। फ्लूइड मटेरियल बन गया तो मतलब मेरे को पोरिंग मतलब है कॉम्पैक्शन, दैट मींस जो भी ये कॉलम में जो भी मतलब जो स्ट्रक्चरल मेंबर में आसानी से लेबर कंफर्टेबली मतलब कंक्रीट है पोर करेगा। ये कितने देर तक रहेगा ये सुपर प्लास्टिसाइजर इफेक्ट, ओनली 1 आवर और 30 मिनट्स रहेगा। हमको तो वर्कबल उतना देर के लिए काफी है, दैट मींस वर्कबिलिटी मेरे को ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जैसा जैसा कंक्रीट अंदर घुस गया है, देन मेरा 0.382 कंक्रीट, दैट मींस वाटर सीमेंट रेशियो मतलब काम करेगा, देन मेरे को अच्छा स्ट्रेंथ मिल जाएगा। दैट मींस ऑल इंग्रेडिएंट्स आर सेम ब्रदर, मतलब मैं बता रहा हूं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है कंक्रीट का, इंग्रेडिएंट्स सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, समझ में आ गया ना, एंड वाटर है मतलब इधर लो एंड हाई वाटर, दैट मींस ये है लो मतलब है 156 लीटर्स एंड 186 लीटर्स। जब भी ऑल इंग्रेडिएंट्स आर सेम, सीमेंट सेम, सैंड सेम, कोर्स एग्रीगेट, बट वाटर है, अगर आपने कम वाटर डाल दिया है दैट विल गिव यू द मोर स्ट्रेंथ, ऑलवेज मोर स्ट्रेंथ। समझ में आ गया ना, जो भी हाईएस्ट वाटर डाला है दिस ऑलवेज विल बी लेस स्ट्रेंथ, ये पॉइंट कभी भूलना मत, मतलब हमेशा आप वाटर सीमेंट रेशियो कम बनाइए। इसके लिए तो आप सुपर प्लास्टिसाइजर मतलब डालिए। मतलब एक स्टूडेंट पूछता है सर मैं सुपर प्लास्टिसाइजर है वो 5 लीटर 10 लीटर डाल देता हूं, मैं काम करता हूं ना सुपर मतलब वाटर सीमेंट रेशियो है ना, स्टेरॉइड है, मतलब वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद है। आप है स्लीपिंग पिल्स यूज करता होगा, सम बॉयज है मतलब सम लोग है नींद के लिए स्लीपिंग पिल्स है, अगर एक लिमिट क्रॉस करके स्लीपिंग पिल्स पिया खाया है, व्हाट हैपन, वो आदमी मर जाएगा। मान लीजिए लिखकर है अल्कोहल है, टू मच कंज्यूम किया है, वो आदमी मतलब खुद मर जाएगा। सो जो भी दवाइयों और खाना वो लिमिट पे होना चाहिए। सिमिलरली ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, अगर ज्यादा लिमिट है, मोर देन 5 लीटर्स, मोर देन 7 लीटर्स यूज किया तो आपको एडिशनल नुकसान करेगा, दैट मींस साइड इफेक्ट्स स्टार्ट करेगा। मान लीजिए आपको मतलब पैरासिटामोल गोली खाया तो आपको बुखार ठीक हो जाएगा, मैं एक काम करता पैरासिटामोल है 50 गोली एट ए टाइम खा लेता हूं, क्या होगा, पहले खुद मर जाएगा। सो दैट है दवाई भी हो खाना हो मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर हो,
लिमिट पे यूज करना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज जितना कम सुपर प्लास्टिसाइजर यूज किया तो उतना बेस्ट इंजीनियर है, दैट मींस यू आर अ बेस्ट इंजीनियर। समझ में आ गया ना, मतलब मैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बात करता हूं, बेस्ट इंजीनियर है। एंड द थिंग इज, मतलब द थिंग इज जितना वाटर सीमेंट रेशियो मतलब लो यूज किया है, यू आर ए बेस्ट इंजीनियर। जितना हाई स्ट्रेंथ प्रोड्यूस किया है, मटेरियल इज सेम ब्रदर, मटेरियल इज सेम, द मटेरियल इज सेम, सेम मटेरियल में जितना हाई स्ट्रेंथ प्रोड्यूस किया है, यू आर ए बेस्ट मतलब कंक्रीट मैन। समझ में आ गया ना। फॉर दैट पर्पस व्हाट शुड बी डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डू, डूस एंड डू नॉट्स यू डोंट, यू हैव टू मतलब वो बैलेंस इन योर माइंड। मतलब आप है मतलब फील्ड एक्सपीरियंस के साथ है, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर है, मतलब ज्यादा कितने यूज करना कितने यूज नहीं करना ये ना। इसमें मैं एक काम करता हूं, कंपैटिबिलिटी बताता हूं, दैट मींस मैं एक चीज बताता हूं आपको, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है, मैं एक स्मॉल एग्जांपल बताता हूं, डोंट माइंड, बुरा मत मानना। दैट मींस सपोज इफ द बॉय इज देयर, वन गर्ल इज देयर, वन बॉय इज देयर एंड वन गर्ल इज देयर, बोथ इंडिविजुअली देखा जाए तो शी इज ए वेरी गुड गर्ल, है ना, एंड ये बॉय देखा था तो ही इज आल्सो वेरी गुड बॉय। समझ में ना। अगर इन दोनों को शादी किया है, इफ दे गेट मैरिड, दोनों है 1 ईयर के अंदर है डाइवर्स मांगेगा। समझ में आ गया ना। बट इंडिविजुअली देखा जाए तो बॉय इज वेरी नाइस बॉय एंड गर्ल इज एक्सलेंट गर्ल, बट इफ दे आर गेट इनटू मैरिड, बट 1 ईयर के अंदर है मतलब डाइवर्स मांगेगा। क्यों? बिकॉज दोनों का बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ में आ गया ना। नाउ कम टू दी सीमेंट पोर्शन। सीमेंट पोर्शन, सीमेंट में अपने पास है क्या क्या सीमेंट ब्रदर, केसीपी सीमेंट है, केसीपी सीमेंट है, विष्णु सीमेंट है, एंड जेपी सीमेंट है, जेपी सीमेंट है, एंड फॉर एग्जांपल अनदर है मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ द सीमेंट्स है। समझ में आ गया ना। मेरे पास है वन सुपर प्लास्टिसाइजर है, वन सुपर प्लास्टिसाइजर, नेम है एसीई ग्लेनियम 30। ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, मैंने BASF कंपनी से मंगवाया। मैं मेरा रेट है 186 रुपीज पर लीटर। समझने के लिए कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं। सपोज दिस इज दिस सीमेंट, ये सीमेंट है ब्रदर, ये सीमेंट कौन सा सीमेंट है, पीपीसी सीमेंट है। केसीपी भी पीपीसी है, विष्णु सीमेंट भी पीपीसी है, जेपी आल्सो पीपीसी एंड अल्ट्राटेक आल्सो पीपीसी। अदरवाइज आई कैन टेक दी ओपीसी ले लेता हूं आपको समझ में आने के लिए। ओपीसी 53 ग्रेड, सारे ओपीसी है, ये भी ओपीसी है ना 53 है, ये भी ओपीसी ग्रेड 53 है, एंड ये भी ओपीसी ग्रेड 53 है। बट इफ आई एम मिक्सिंग विथ केसीपी, if I am mixing with this, I am mixing with the same, I am mixing the result should not be same। क्या हो गया? कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग दैट मींस द एडजस्टमेंट बिटवीन द टू मटेरियल्स। जो भी ये पर्टिकुलर सुपर प्लास्टिसाइजर, ये BASF AC 30 सुपर प्लास्टिसाइजर है, मतलब विष्णु सीमेंट के साथ बेटर रिजल्ट दे देगा। नाउ यू सी, विष्णु सीमेंट के साथ है ना बेटर रिजल्ट, दैट मींस 80 MPa स्ट्रेंथ दे देगा। बट जेपी सीमेंट के साथ है 70 MPa दे देगा, दैट मींस अल्ट्राटेक में 65 MPa दे देगा, एंड केसीपी के साथ है 55 MPa दे देगा। नाउ यू कैन आस्क मी सर ऐसा क्यों हो गया, सर ऐसा क्यों हो गया? दैट मींस ऑल मटेरियल्स आर सेम, ये भी ओपीसी, ये भी ओपीसी, ये भी ओपीसी, ये भी ओपीसी, द सुपर प्लास्टिसाइजर इज सेम, सैंड इज सेम, कोर्स एग्रीगेट इज सेम, ऑल अदर मटेरियल्स आर सेम। बट क्या हो गया? द कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम हो गया, एडजस्टमेंट। दैट मींस पेंसिलिन इंजेक्शन देखो, पेंसिलिन इंजेक्शन है मतलब कुछ लोग को सूटेबल करेगा, कुछ लोग को साइड इफेक्ट शुरू होगा, उल्टी हो जाएगा, रेड रैशेस आ जाएगा। आपको पेंसिलिन इंजेक्शन लगाने के पहले थोड़ा टेस्ट करता है। सिमिलर वे आपको एक मार्स कोन एपरेटस आता है, याद रखना, मतलब आपको आता है नहीं आता आई डोंट नो, एक मार्स कोन ऑपरेटस आता है। ये मार्स कोन ऑपरेटस में क्या करेगा, 1:6 और 1:3 रेशियो में, 1:3 रेशियो में दिस सुपर प्लास्टिसाइजर एंड सीमेंट, ये सीमेंट ये है एक लिक्विड बना देगा, जस्ट लाइक यू विल मेक ए लिक्विड। समझ में ना, ये लिक्विड है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर, है ना ये लिक्विड। दैट मींस फर्स्ट है केसीपी सीमेंट प्लस दिस सुपर प्लास्टिसाइजर प्लस वाटर, इसके साथ है मतलब ये तीनों एक स्लरी बना दी, एक स्लरी, दैट मींस जस्ट लाइक ए स्लरी। ये स्लरी है, इसमें पोर कर दीजिए, यू विल पोर इन दी स्लरी इन दी मार्स कोन। इधर है एक लिड होती है, दैट मींस इधर है एक ओपनिंग रहती है, इसको ओपन कर दीजिए, मतलब तुरंत है ये नीचे ड्रॉप करेगा।
इट विल ड्रॉप, दैट मीन्स फ्लो, दैट मीन्स कितने टाइम है, दैट मीन्स द टाइम इज मान लीजिए 72 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स के अंदर है, द 72 सेकेंड्स के अंदर है दिस 1 लीटर स्लरी है, दैट मीन्स ये स्लरी कैसे बन गया, केसीपी सीमेंट प्लस सुपर प्लास्टिसाइजर प्लस वाटर, है ना, ये तीनों मिक्सर करके मतलब आप इसमें ये स्लरी कीचड़ जैसा ये स्लरी को इसमें डाल दिया, 72 सेकेंड्स में ये पूरा 1 लीटर मटेरियल है नीचे गिर गया है। सो दिस इज द केसीपी सीमेंट। सिमिलर वे आप जेपी सीमेंट का टेस्ट कर दीजिए, जेपीटी का, वो मान लीजिए 64 सेकेंड्स में मतलब वो गिर गया। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल विष्णु सीमेंट है, वो मान लीजिए 55 सेकेंड्स में खाली हो गया। उसका मतलब है ये तीनों में बेस्ट सीमेंट कौन सा, द बेस्ट सीमेंट है ये विष्णु सीमेंट है। क्यों, दैट मीन्स द फ्लूइडिटी मतलब इसके साथ अच्छा बनता है। द बेस्ट फ्लूइडिटी will be made by that particular ACE30 super plasticizer with the विष्णु सीमेंट कॉम्बिनेशन। आपको मैं हॉस्टल में बता रहा हूं एक एग्जांपल के लिए, जो बीड़ी पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है ना, वो लड़का हमेशा उसी का दोस्त को मतलब वो सेट करता रहेगा, मतलब जो साथ में घूमने के लिए, साथ में बीड़ी पीने के लिए जो पढ़ता है ना, वो लड़का हमेशा उसका जो साथ में अच्छा बच्चा को मतलब वो दोस्ती करता है। सिमिलरली क्यों, दैट मीन्स एक ग्रुपिज्म चलता है। ग्रुपिज्म मतलब है अपना दोस्त को आप खुद सेलेक्ट करोगे। हॉस्टल्स में देखो मतलब 5000 हॉस्टल्स है, स्टूडेंट्स है, उसका मान लीजिए बॉय नंबर ए इज ऑलवेज फ्रेंडशिप विद द बॉय नंबर एच, वाई मतलब एच एंड बी बॉय है, हमेशा लड़ता रहेगा। क्यों, ये दोनों का बीच में झगड़ा है, दिस इज नॉट कंपैटिबल, मतलब ए एंड एच, दिस बॉय नंबर ए एंड बॉय नंबर एच, ये दोनों गुड फ्रेंड्स है, these two are the good friend. Similarly Vishnu cement and that ACE30 super plasticizer, ये दोनों आपको बेस्ट रिजल्ट दे देगा। इसलिए आप कभी भी सुपर प्लास्टिसाइजर साइट पे यूज करने के पहले आप एक काम करिएगा, मार्स कोन ऑपरेटस ले लीजिए, मार्स कोन ऑपरेटस यूज करके आपका फ्लूइडिटी चेक करिए, द फ्लूइडिटी टेस्ट करके जिसमें कम समय में लेस टाइम में वो स्लरी बाहर आ जा रहा है, देन दैट इज द बेस्ट कंपैटिबल सीमेंट। आप मार्केट में ये काम करना, मार्केट से सैंपल लेके आइए, 5 तारीख का सीमेंट लेके आइए, आपके पास सुपर प्लास्टिसाइजर रेडी है, फिर ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, पहले विष्णु सीमेंट के साथ टेस्ट करिए, जेपी के साथ टेस्ट करिए एंड केसीपी के साथ टेस्ट करिए। ये टेस्ट करने के बाद है आप जिसमें फ्लूइडिटी बहुत तेज से भाग रहा है वही सुपर प्लास्टिसाइजर है यूज करिए साइट पे, समझ में आ गया ना। सो दिस इज कॉल्ड द कंपैटिबिलिटी स्टडी। सो आपका जो सिलिका फ्यूम हो और अदरवाइज ये सुपर प्लास्टिसाइजर है, बिफोर गोइंग टू यूज डायरेक्टली आप एक काम करिए, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करिए। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या पूछता है आपसे, भैया आपको पेनिसिलिन इंजेक्शन सूट करती है नहीं करती है, आप बोलोगे सर मेरे को पता नहीं सर, मैं यूज ही नहीं किया। तब आप एक काम करता है, वो डॉक्टर है थोड़ा एक 1 or 2 ml है, मतलब पहले आपका स्किन में इंजेक्ट करेगा, थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद टेस्ट करेगा। अगर आपको उल्टी आ गया तो आपको वो इंजेक्शन सूट नहीं कर रहा है। सिमिलर वे द सुपर प्लास्टिसाइजर है, सूट करती है नहीं करती है, मतलब आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। नाउ ये सिलिका फ्यूम देखो, दैट मीन्स ये सिलिका फ्यूम है, द पोर्टलैंड सीमेंट एंड सिलिका फ्यूम। नाउ ये क्यूमुलेटिव मासेस ऑफ द परसेंटेज फाइनर है, ये परसेंटेज फाइनर देखा, सिलिका फ्यूम है जो राइट साइड में है, राइट साइड मतलब है वेरी फाइनेस्ट मटेरियल। ये फ्लाई ऐश देखो, सिलिका फ्यूम को सीमेंट का बीच में है, दैट मीन्स आपका कर्व है, ये राइट हैंड साइड मतलब क्या है, दिस इज द वेरी फाइनेस्ट मटेरियल एंड फ्लाई ऐश है सिलिका फ्यूम से थोड़ा मतलब मोटी है, ग्रेन साइज है मोटी है, एंड पोर्टलैंड सीमेंट एंड फ्लाई ऐश से भी और थोड़ा मोटी है, समझ में आ गया ना। दैट मीन्स वेरी मतलब थिक पार्टिकल है, समझ में आ गया ना। दिस कर्व मेनली इंडिकेट्स द मतलब परसेंटेज फाइनर्स ऑफ द सिलिका फ्यूम एंड फ्लाई ऐश एंड पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, सिलिका फ्यूम इज वेरी एक्टिव पोज़ोलाना मटेरियल एंड एड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट कंक्रीट। मतलब सिलिका फ्यूम क्यों स्ट्रेंथ देती है, बिकॉज इट विल कंटेन्स द मतलब एमार्फस सिलिका एंड इट विल माइक्रोफिलिंग काम करती है। माइक्रोफिलिंग मतलब क्या है, दैट मीन्स सीमेंट ग्रेन का बीच में जो कैविटीज रहते हैं ना, छोटा कैविटीज, स्ट्रक्चर बन जाएगा कब, व्हेन यू आर यूजिंग द सिलिका फ्यूम। बट ओनली नुकसान पार्ट क्या है, मतलब जैसा सीमेंट यूज करोगे पानी ज्यादा मांगेगा, पानी मतलब है बहुत प्यास लगता है पानी ज्यादा यूज किया तो क्या करेगा,
पानी ज्यादा ऐड किया तो आपका स्ट्रेंथ बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रेंथ बिगड़ना नहीं चाहिए। एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द सुपर प्लास्टाइजर। सुपर प्लास्टाइजर ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सुपर प्लास्टाइजर यूज कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, पानी है मुफ्त में मिलता है, मिक्सिंग वाटर मुफ्त में मिलता है, बट सुपर प्लास्टाइजर 1 लीटर है 300 रुपए। सो कंक्रीट है कॉस्टली पड़ता है। ये मतलब कंक्रीट में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू वेरी केयरफुल। दैट मीन टेरिटरी ब्लेंड्स। टेरिटरी मतलब है 3 आइटम्स। 3 आइटम्स क्या क्या है, फ्लाई ऐश एंड क्लिंकर्स एंड सिलिका फ्यूम। दैट मीन 3 आइटम्स। दैट मीन्स इसका जो मिक्सर देखो, दैट मीन्स बांद्रा वर्ली सीलिंग में M60 ग्रेड कंक्रीट है, दे आर मेड विद सुपर प्लास्टाइजर कितने डाला 3.4%, सीमेंट कितने केजी डाला 320, एंड माइक्रोसिलिका। माइक्रोसिलिका मतलब है द सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम का दूसरा नाम क्या ब्रदर, माइक्रोसिलिका, याद रखना। फ्लाई ऐश है 105, मतलब माइक्रोसिलिका फाइन है और सिलिका फ्यूम फाइन है। माइक्रोसिलिका ऑब्वियसली फाइनेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट सिलिका फ्यूम फाइन रहती है, सीमेंट फाइन रहती है, ऑब्वियसली फाइन है। फ्लाई ऐश है फाइनेस्ट मटेरियल रहती है। एंड 20 mm एग्रीगेट कितने साइज यूज किया 530 kg। 10 mm एग्रीगेट 50%। मैं मोटा मोटा बताता हूं, ये 20 mm एग्रीगेट एंड 10 mm एग्रीगेट है ना, अप्रोक्सीमेटली 60-40 रेशियो में ऐड करता है। याद रखना 60 and 40, that means 60% of the this material 20 mm and 40% है 10 mm aggregate। generally normal range is मतलब 60% है 20 mm aggregate and 40% है aggregate। क्यों ऐसा करते हैं, उसका मतलब है, मैं मोटा मोटा बात करता हूं, मतलब लेमैन लैंग्वेज में, इसका जो 20 mm का जो स्टमक में ये 10 mm aggregate है फिल करना चाहिए। ये 10 mm एग्रीगेट का बीच में सैंड पार्टिकल्स फिल करना चाहिए। ये सैंड एंड सैंड का पार्टिकल्स का बीच में सीमेंट फिल करना चाहिए। ये सीमेंट एंड सीमेंट का बीच में कौन फिल करना चाहिए, ये फ्लाई ऐश फिल करना चाहिए। ये फ्लाई ऐश एंड फ्लाई ऐश का बीच में जो कैविटी है, गैप है, उसमें ये माइक्रोसिलिका। माइक्रोसिलिका मतलब सिलिका फ्यूम एंड वाटर। वाटर है माइक्रोसिलिका का बीच में जो कैविटीज है उसमें भी वाटर घुस जाती है। बट मतलब वंस द मटेरियल इज ड्राइड, दैट मीन्स एवापोरेट हो गया, दैट मीन्स वाटर हो गया, इसलिए उधर है कैविटी बन जाती है। इसलिए मतलब आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्यों कम यूज करने के लिए मैं बोल रहा हूं, व्हाई आई एम सेइंग दैट यूज द वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द वाटर, बिकॉज कंक्रीट है सूखने के बाद मतलब जो भी पानी का जो मतलब एवापोरेट हो गया, उधर क्या हो जाएगा, ये छोटा छोटा कैविटीज फॉर्मेशन हो गया। जितना कैविटीज कम है वो सीमेंट है, दैट मींस कंक्रीट है, क्यूब है, उतना ताकत दे देगी ऑब्वियसली। इसलिए आप एक काम करो ना, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम यूज करो। ओनली आपको फर्स्ट 1 आवर में ही कंक्रीट का वर्कबिलिटी चाहिए ब्रदर। 1 आवर कंप्लीट हो गया, आपका वर्कबिलिटी का कोई समस्या नहीं है, यू डोंट नीड द वर्कबिलिटी। सो एक काम करो ना, स्टेरॉइड्स यूज करो ना। स्टेरॉइड्स मतलब है मेरा लैंग्वेज में सुपर प्लास्टाइजर। वो सुपर प्लास्टाइजर है 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर तक है सुपर प्लास्टाइजर है, खरीद लो एंड मतलब वाटर के साथ मिला के पानी डाल दो, सो दैट 1 आवर तक है ना, जस्ट लाइक फ्लूइडिटी वर्कबिलिटी बन जाएगा। हाँ, जैसा वर्कबिलिटी बन गया, लो वाटर सीमेंट रेशियो ना, दैट मींस 156 लीटर ही पानी डाला है। जैसा जैसा कंक्रीट है मतलब जाके मतलब कॉलम में मतलब फुटिंग में है ना, बीम्स में बैठ गया है, इमीडिएटली आपको स्ट्रेंथ है, मतलब हार्ड एंड होने के बाद भी स्ट्रेंथ है, अच्छा स्ट्रेंथ दे देगा। समझ में आ गया ना? हाँ, ओके, नाउ आई विल स्टॉप एट दिस स्टेज। हाँ, नाउ द क्वेश्चन टाइम, मतलब मैं यस सर। वो एक सेकंड, ये हाइड। नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछिए। हाँ ये सर, ये पूछिए। जैसे आपने बताया कि फ्लाई ऐश सिलिका फ्यूम्स जैसे यूज करते हैं कंक्रीट में, तो ये बहुत ही फाइन मटेरियल होते हैं सर, तो इनके हैंडलिंग में आती होगी। मतलब आप जैसे मोतीपुरा या तमिलनाडु से लाए थे, तो वो कैसे आप मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये फाइन मटेरियल?